Welcome students to your online class. Today we are going to study English Reader chapter number 3 का second part. Chapter number 3 जो हमने कल पढ़ा था the same thing उसका second part. But Fidur could not answer one word. He was so stuffed after his dinner. To distract his attention, he took a fat pocketbook out of his pocket and began counting his money. जो फिदूर था वो कुछ भी शब्द नहीं कह पा रहा था खाना खाने के बाद, तो उसने क्या किया, उसने अपने पॉकेट से began counting his money, एक वो पैसे निकाले और उसे गिनने लगा. There was a great deal of money, but फिदूर wanted more still. लेकिन फिदूर को और चाहिए था. The devil in the blue spectacles was brought him another notebook, fatter still, but he wanted even more. उसने दूसरा भी दिया, फिर भी उसे और चाहिए था. And the more he counted, the more discontented he became. उससे जितना भी वह दे रहा था उतना उसके लिए कम था. We have a great deal of money, he said to his wife. उसने क्या बोला अपनी वाइफ से कि हमारे पास एक बहुत अच्छी डील है. We must look out or thieves will be breaking in. You had better go and look with a candle. He did not sleep all night. वह रात भर नहीं सोया and kept getting up to see if his box was all right. और वह देखने लगा कि मेरा बॉक्स सही है कि नहीं. In the morning he had to go to church. सुबह वह चर्च गया. That the same honor is done to the rich and the poor alike. और जैसा वह ऑनर मिलता है गरीब और अमीर को, वैसा हुआ. When Fadur was poor, he used to pray in church like this: God forgive me a sinner. He said the same thing now though he had become rich. उसने जब अभी भी किया तो उसने यही प्रे किया. What difference was there? And after that, Fidur, would you not be buried in gold, not in diamonds, but in the same black earth as the poorest beggar? Fidur would burn in the same fire as cobblers. Fidur resented all this, and too he felt weighed down all over by his dinner, and instead of prayer he had all sort of thought in his head about his box of money, about thieves, about his barteted ruined soul. उसने क्या सोचा, उसने कहा, उसने वह यह सोच रहा था कि मरने के बाद तो सभी को सोना चांदी ये सब किसी के लिए कोई काम नहीं रहता, जो वैसा ही होना है जैसा दूसरे लोगों के साथ होता है. He came out of church in a bad temper to drive away his unpleasant thoughts as he had often done before. उसने जो पहले किया उसके लिए वह सोचता रहता है और आता है. He struck up a song at the top of his voice. वह गाना गाता है. But as soon as he began, a policeman ran up and said, with his fingers to the peak of his cap. एक पुलिसमैन आता और उससे कहता, Your Honor, gentle folk must not sing in the street. जो अच्छे लोग होते हैं वो रास्तों पे गाना नहीं गाते. You are not a shoemaker. आप एक shoemaker जूता बनाने वाले नहीं हो. फिदूर leaned his back against a fence and fell to thinking. वह फिर एक दीवार के पास गया, छत के पास गया और वह सोचने लगा. What could he do amuse himself? क्या करे वो? Your Honor, a porter shouted to him. Don't lean against the fence, you will spoil your fur coat. अरे आप यहाँ पे मत खड़े हुए, नहीं तो आपका ये फर कोट है ख़राब हो जाएगा. Fidur went into a shop and bought himself the very best concertina, then went out into the street playing it. Everybody pointed at him and laughed. सब कोई उसे देख रहे थे और हंस रहे थे. And the gentleman too, the cabbed, jeered at him like some cobbler. Is the proper thing for gentlefolk to be disorderly in the street? एक अच्छे लोगों के लिए ये सब ऐसा रास्तों पे घूमना अच्छा नहीं है. Policeman said to him, You had better go into a tavern. तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम एक पब में चले जाओ. Your Honor, give us a trifle for Christ's sake. The beggars were surrounding Fidur on all sides. सभी चारों तरफ से उसे घेर लेते. In earlier days, then he was a shoemaker. The beggars took no notice of him. Now they wouldn't let him pass. जब वह शू मेकर था तब सभी गरीब उसे घेर लेते थे, उसे देखते नहीं थे. Now they wouldn't let him pass. अब वो ऐसे जाने नहीं दे रहे थे. And at home he had no sooner sat down to tea than the evil spirit in the blue spectacles appeared and said. जब वह घर जाता है तब वह देखता है कि वह जो व्यक्ति है वो फिर से आ जाता. कम फिदूर, आई हैव परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द बारगेन, नाउ साइन योर पेपर एंड कम अलॉन्ग विथ मी. उसने क्या बोला कि चलो फिदूर, अब जो तुमने मांगा था मैंने तुम्हें दे दिया, अब जो तुमने हमें बोला था चलो हमें दे दो और पेपर पर साइन करो. एंड ही ड्रैग्ड फिदूर टू हेल स्टेट टू द फर्नेस एंड डेविल्स फ्लू अप फ्रॉम द डायरेक्शन एंड शाउटेड फू ब्लॉक हेड एस. उसने क्या बोला, फिदूर को ले जाते हुए कहा कि स्टेट एंड डेविल्स फ्लू अप, और जो है चला गया.
चिल्लाते हुए। देयर वॉज अ फियरफुल स्मेल ऑफ पैराफिन इन हेल, वहाँ पे नरक में उसे ले जाने के लिए कहा, इनफ टू सफोकेट हम। एंड सडनली इट ऑल वैनिश्ड। फिदूर ओपन हिज आई एंड सॉ हिज टेबल द बूट्स एंड द टिन लैम्प। उसकी आंखें खुल गई और उसने सब चीज़ वैसी ही देखी। द लैम्प ग्लास वॉज ब्लैक, जो लैम्प का ग्लास था वो काला था। एंड फ्रॉम द फेंट लाइट ऑन द विक केम क्लाउड्स ऑफ स्टिंकिंग स्मोक एज फ्रॉम अ चिमनी, और चिमनी से काला धुआं निकला था, जिससे पूरा धुआं ही धुआं हो गया था। नियर द टेबल स्टूड द कस्टमर इन द ब्लू स्पेक्टर्स शाउटिंग एंग्रीली। उसने क्या बोला कि वहाँ पर एक कस्टमर खड़ा था नीले चश्मे लगाए हुए, और वह गुस्से से चिल्ला रहा था। आई गिव यू अ लेसन यू स्काउंड्रल, यू टुक द ऑर्डर अ फोर्टनाइट अगो एंड द बूट्स आरंट रेडी। उसने क्या बोला कि मैंने तुम्हें पिछले ही दिन कहा था कि मुझे बूट्स चाहिए और तुम उसे तैयार नहीं कर पाए। डू यू सपोज आई वॉन्ट टू कम राउंड हियर हाफ अ डजन टाइम्स अ डे फॉर माई बूट्स, यू व्रेच यू ब्रूट। उसने क्या बोला, उसे चिल्लाते हुए बोला कि क्या तुम क्या सोच रहे हो कि मैं क्या 10 बार आऊँगा क्या तुम ये अपने बूट्स लेने के लिए तुम्हारे पास। दूर शो के हैंड एंड सेट टू वर्क ऑन द बोट्स। उसने सर को अपने हिलाया और वह फिर काम में लग गया। द कस्टमर वेंट ऑन स्वेरिंग एंड थ्रेटिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। एट लास्ट व्हेन ही सबसाइड फिदूर आस्क्ड सडनली, एंड व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन सर। उसने क्या बोला, उसने उससे पूछा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। आई मेक बंगाल लाइट्स एंड फायरवर्क्स, आई एम अ फायरोटेक्नीशियन। उसने क्या बोला कि मैं लाइट्स और फायरवर्क से सब पटाखे वगैरह बनाता हूँ। फिदूर गेव द कस्टमर द बूट्स, टुक द मनी फॉर देम एंड वेंट टू चर्च। फिदूर ने क्या किया, कस्टमर से बूट्स दिए, उसे पैसे लिए और वह चर्च के लिए गया। कैरीज एंड स्लेज with bearskin rugs were dashing to and fro in the street. Merchant ladies officer were walking along the pavement together with the humbler folk. उसने सभी लोगों को देखा कि वह रास्ते से जा रहे हैं, बट फिदूर इक्वली बैडली ऑफ, लेकिन वह did not envy nephew at this law. It seemed to him now that the rich and the poor were equally badly off. उसने क्या देखा कि सभी लोग बराबर ही होते हैं. Some were able to drive in a carriage and other to sing song at the top of awaiting their voice and to play the concert, but one and the same thing, the same grave was awaiting all like. उसने क्या बोला, सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, सभी मरने के बाद एक ही जैसी कब्र मिलती है सबको. And there was nothing in life for which one would give the devil even a tiny scrap of one's soul. उसने बोला कि हमारी आत्मा से ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर हम किसी और को अपनी आत्मा कभी नहीं दे सकते हैं. ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.